Good morning students. Exercise 8.4 we were doing in our previous class, and today again I am here to proceed it further. So today we will solve third part of question number 5. First part we discussed in our previous class. Second part I have already told you in earlier class, and today we will study third part of question number 5. Take out your NCERT book and reference book also with you. Now third part is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta cosec theta. In left side we have trigonometric ratios tan theta and cot theta, but in right side we have trigonometric ratios sec theta and cosec theta. आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं है, और सेम नहीं है इट मींस आपको लेफ्ट हैंड साइड के सारे ही टी रेशियोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फाइनली हम सॉल्व करते हुए देखेंगे कि किस तरीके से हमें राइट साइड मिलता है. सो फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सिंपलीफाइड फॉर्म. हम सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो हाउ कैन वी राइट tan थीटा? वी कैन राइट tan थीटा एज sin थीटा अपॉन cos थीटा. आपने tan थीटा को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा. Okay, everywhere wherever we had tan theta and cot theta, we have converted them according to quotient relationship. अब हमने quotient relationship के अकॉर्डिंग को चेंज कर दिया in terms of sin theta and cos theta. ठीक है, अब सॉल्व करेंगे. अब क्या दिमाग में आ रहा है अगला स्टेप? Here we should take LCM. Now in next step we will take LCM. So this numerator will remain as it is, sin theta upon cos theta whole upon, here we will take LCM. LCM of sin theta and 1 is sin theta. Sin theta multiplied by 1 gives sin theta minus cos theta multiplied by 1 gives cos theta. Plus will come as it is. Here also we will have to follow that same procedure. Cos theta upon sin theta will remain as it is upon, यहाँ आपने दिया LCM. LCM of cos theta and 1 will be cos theta. Cos theta into 1 cos theta minus 1 into sin theta sin theta. Now see, after this step now we have 4 terms here in this way. So what should we do? We have to do its reciprocal. हमें इसका reciprocal करके ऊपर ले जाना है and it will go in multiplication. Now solve it. Sin theta upon cos theta multiplied by, ये reciprocal के ऊपर जब जाएगा तो this denominator sin theta will go in numerator. तो ये चला जाएगा into sin theta upon sin theta minus cos theta. ये देखिए इससे अगर क्वेश्चन ऐसे कोई a upon b whole upon c upon b, इस तरीके के पैटर्न को सॉल्व हम कैसे करते हैं? a upon b will remain as it is multiplied by, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं ये रेसिप्रोकल के ऊपर चले जाएंगे तो क्या जाएगा d upon c. कैसे सॉल्व होता है ये आपने प्रीवियस छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है. a upon b whole upon means डिवाइडेड बाय c अपॉन b. आया यार? फिर इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? इस बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल कर होता जाएगा d अपॉन c. पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? वही सेम कांसेप्ट ही यहाँ काम आ रहा है. अब देखिए प्लस यहाँ पर भी वही सेम कांसेप्ट काम आएगा. अब उन्होंने क्या किया? cos थीटा अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा, cos थीटा will come in numerator upon cos थीटा minus sin थीटा will come as denominator. ठीक है? Now proceeding further, numerator will be multiplied by numerator and denominator by denominator. Sin थीटा multiplied by sin थीटा gives sin square थीटा upon denominator में मल्टीप्लाई मत कीजिए, इनको ऐसे रखेंगे cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा माइनस cos थीटा. अगर आप मल्टीप्लाई भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आपको वापस से कॉमन निकालना ही पड़ेगा, इसलिए देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई. sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा गिव्स यू cos
नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक एलसीएम अगेन, लेकिन बिफोर गोइंग टू एलसीएम एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर्स में, दोनों डिनोमिनेटर्स में कुछ चीज सेम आ रही है, या अगर सेम नहीं आ रही तो क्या कुछ एक चीज कॉमन निकाल के कोई डिनोमिनेटर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे पहले मैं देखिए मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया 4/5 प्लस 9/-10। इफ वी नीड टू सॉल्व इट, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो बिफोर गोइंग टू एलसीएम, एलसीएम लेने से पहले स्टेप क्या होगा कि आप इस माइनस साइन को ऊपर शिफ्ट करेंगे, बिकॉज आप जब एलसीएम लेंगे देन बोथ द डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो अपने इस तरह से किया 4/5 प्लस माइनस माइनस 9/10, और अब हम नॉर्मली जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये सेम कंसेप्ट यहाँ भी काम आ रहा है। एक चीज आप ध्यान से नोटिस कीजिए, 10th क्लास ब्रैकेट में जो चीज आ रही है sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ आ रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा। दैट मींस अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो या फिर आप यहाँ से कॉमन ले लो, एक ही बात है। अगर हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो sin थीटा विल बिकम पॉजिटिव एंड cos थीटा विल बिकम नेगेटिव। तो क्या ये चीजें सेम नहीं आ जाएंगी, है ना? बिकॉज जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या होता है, जो चीज कॉमन है वो एक बार ही आएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, ये टर्म तो पूरी पूरी एज इट इज आ गई, नो मॉडिफिकेशन इन दिस, प्लस cos स्क्वायर थीटा भी एज इट इज आया अपॉन इस ब्रैकेट में से आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये आ गया माइनस sin थीटा। ठीक है, माइनस sin थीटा आ गया ये, और यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो sin थीटा विल बिकम पॉजिटिव एंड cos थीटा विल बिकम नेगेटिव। ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन लेने के साथ ही नेगेटिव टर्म कन्वर्ट्स टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कन्वर्ट्स टू नेगेटिव। इसको करने का लॉजिक क्या था, मेन स्टेप ही यहाँ पे यही है, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल चेंजेस हम लोगों ने किए हुए किया है। यहाँ पे इसको ये करने का फायदा ये है कि आप ब्रैकेट में देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा वहां भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दैट मींस नाउ इतनी ये चीज तो सेम ही है। अब आपको एलसीएम लेना तो आप इजीली एलसीएम ले पाएंगे। अगर आप पहले एलसीएम लेते तो आप ये भी एलसीएम में लेते, ये भी लेते, ये भी लेते और ये भी लेते, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन का डिफरेंस है। हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट वाली चीजें सेम आ गई। ठीक है, अभी एक स्टेप और होगा फिर हम एलसीएम लेंगे। नाउ वी कैन राइट इट एज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए प्लस इनटू माइनस, इस साइन को ऊपर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो प्लस माइनस माइनस, या गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। नाउ वी आर रेडी टू टेक एलसीएम। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा, देखिए दोनों डिनोमिनेटर देखना, जो चीज सेम है sin थीटा माइनस cos थीटा इट विल कम वंस ओनली, ये एक बार आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा, ये तो एक बार आना ही था। यहाँ cos थीटा आ रहा है और यहाँ sin थीटा आ रहा है, सो बोथ विल कम sin थीटा इनटू cos थीटा। तो एलसीएम आ गया sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, माइनस साइन कॉमन निकालने से ये फायदा हुआ। अब सॉल्व कीजिए। अब एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करना आता है, इस डिनोमिनेटर में cos थीटा है, sin थीटा माइनस cos थीटा, क्या चीज नहीं है, sin थीटा नहीं है, सो sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा गिव्स sin क्यूब थीटा माइनस विल कम एज इट इज। यहाँ देखिए sin थीटा है, sin थीटा माइनस cos थीटा है, क्या चीज नहीं है, cos थीटा, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा गिव्स cos क्यूब थीटा। Now see, can we apply a cube minus b cube formula here? आपको यहाँ पे a cube minus b cube formula अप्लाई करना है, तभी अप्लाई कर पाओगे जब याद होगा। So जितनी भी आइडेंटिटीज हमने 9th क्लास में पढ़ी है 10th क्लास में, सारी की सारी आइडेंटिटीज काम में आएंगी, तो प्लीज उनको आप रिवाइज कर लें। So a cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square. This identity we will apply here in numerator। अब अप्लाई कीजिए, a is sin थीटा, a minus b sin थीटा minus b is cos थीटा, sin थीटा minus cos थीटा मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, a क्या है sin थीटा, तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ab, a sin थीटा into b cos थीटा प्लस b स्क्वायर, b is cos थीटा, तो आ गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर विल कम एज इट इज sin थीटा
इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं, कट गया। ठीक है, अब जो चीज बच गई वो सॉल्व कीजिए। हमने ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चीज सेम आके हमने काट दिया। अब यहाँ देखिए कैन बी अप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आप रीजन देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करके लिख दीजिए। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग लिख दिया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग लिख दिया। वही सेम चीज अगर आपको दिया होगा a प्लस b अपॉन 2, तो क्या हम इसको a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 नहीं लिख सकते? बोथ आर सेम थिंग्स। वही सेम कंसेप्ट मैं यहाँ कर रही हूँ। तो यहाँ आप लोगों ने 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा सेपरेट कर दिया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा सेपरेटली लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये तो सेम टू सेम कट ही रहा है, ये तो कट के आ गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज cosec थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज द 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है। cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा। तो आवर आंसर इज 1 प्लस sec थीटा into cosec थीटा which is equal to RHS। वो RHS के इक्वल आ गया, LHS equals to RHS, hence proved। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके। क्वेश्चन लेंथी जरूर है 10th क्लास, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। आपने सिंपली इसको कन्वर्ट किया, वही सेम कंसेप्ट एलसीएम लिया, रेसिप्रोकल करके ऊपर भेजा, सॉल्व किया। फिर आपने बस यहाँ जो एक स्टेप है वो ध्यान रखना है कि माइनस साइन अपने कॉमन लिया, बिकॉज माइनस साइन कॉमन लेने से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम चीज आ रही है। फिर वही सेम कंसेप्ट एलसीएम लिया, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व करते के साथ ही कुछ चीजें कट गई, कहीं आइडेंटिटी बन गई और सॉल्व करते के साथ ही अपना आंसर आ रहा है। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस वेरी इजीली। अंडरस्टूड? नाउ लुक एट दिस फोर्थ पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। 1 plus sec a upon sec a equals to sin square upon 1 minus cos a। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि कई बार आपको LHS और RHS दोनों ही सिंपलीफाई करने पड़ सकते हैं, दोनों ही सिंपलीफाइड फॉर्म में आपको नहीं दिए होते। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को LHS एज वेल एज RHS दोनों ही सॉल्व करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंपलीफाई LHS। 1 plus sec a can be written as 1 upon cos a upon sec a is again 1 upon cos a। फिर आपने यहाँ LCM लिया, cos a 1 का LCM आ गया cos a, cos a into 1 cos a plus 1 into 1 1 upon cos y गई एज होल अपॉन 1 upon cos a। फिर वही सेम कंसेप्ट आगे चार टर्म्स आ गई, तो ये नीचे वाले टर्म्स रेसिप्रोकल के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो cos a से cos a कट गया, अपने पास LHS आया 1 plus cos a जो कि बिल्कुल सिंपलीफाइड फॉर्म है। ठीक है, अब ये आपको RHS में भी लेकर आना है, दैट मींस वी हैव टू सिंपलीफाई RHS आल्सो। अब देखिए RHS में दिख रहा है आपको sin square a upon 1 minus cos a, मतलब we know that sin square a can be replaced in terms of cos square a। तो हम sin square a को क्या लिख सकते हैं 1 minus cos square a upon 1 minus cos a का इज आएगा ही। अब देखिए यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगाई sin square a equals to 1 minus cos square a। Here again can we apply any other identity? A square minus b square। a क्या है 1, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिखोगे तो एक ही बात है a square minus b square which is equal to a minus b into a plus b upon 1 minus cos a। 1 minus cos a से 1 minus cos a कट जाएगा, क्या मिला आपको 1 plus cos a which is equal to LHS। both are same, both are in simplified form। तो इस तरीके से LHS और RHS को सेपरेटली भी सॉल्व करना पड़ सकता है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, समझ आ गया होगा। वहां sec a था, यहाँ sin और cos की फॉर्म थी, तो आपको पता है कि sec a can be written as 1 upon cos a। सिंपलीफाई कर लिया, यहाँ पे आपके दिमाग में है sin square a को हमने 1 minus cos square a लिखा, सॉल्व करके आंसर आ गया इजीली। ओके,
Now look at this sixth part. Prove that under root 1 plus sin a upon 1 minus sin a equals to sec a plus tan a. यहाँ अंडर रूट सिंबल दिया हुआ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अंडर रूट सिंबल नहीं है, तो क्या क्लिक कर रहा है दिमाग में कि एनी हाउ वी हैव टू रिमूव दिस अंडर रूट साइन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से आपको अंडर रूट साइन को रिमूव करना ही पड़ेगा बिकॉज वहां अंडर रूट में आ रही है और राइट साइड में अंडर रूट साइन आ ही नहीं रहा। तो अंडर रूट साइन आप रिमूव कैसे करेंगे? याद कीजिए कंसेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन व्हिच वी हैड स्टडीड इन 9th क्लास एज वेल एज इन एक्सरसाइज 8.2 आल्सो वी अप्लाइड द सेम कंसेप्ट। हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए उसके कंजुगेट नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था। वो सेम कंसेप्ट यहां काम में आएगा 10th क्लास। अब यहां लेफ्ट हैंड साइड में आपको sin a की फॉर्म दी हुई है, राइट हैंड साइड में sec a और tan a की फॉर्म दी हुई है। तो लेट अस सी कि अगर हम इसको कंजुगेट नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है और उसके बाद रूट किस तरीके से रिमूव होगा। इतना तो देखो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक करेगा। इसका कंजुगेट क्या है? 1 minus sin a का कंजुगेट क्या है? 1 plus sin a। वी हैव टू चेंज दिस मिडिल मोस्ट साइन। तो 1 plus sin a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी ऊपर 1 plus sin a आ रहा है। 1 plus sin a into 1 plus sin a 1 plus sin a होल स्क्वायर, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये रूट के अंदर जो चीजें हैं अगर इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाए तभी तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाया? रेशनलाइजेशन वाला। अंडर रूट 1 plus sin a अपॉन 1 minus sin a मल्टीप्लाई बाय 1 plus sin a अपॉन 1 plus sin a टू रेशनलाइज डिनोमिनेटर। रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया? डिनोमिनेटर कंजुगेट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हैव अ लुक एट न्यूमरेटर 1 plus sin a 1 plus sin a। कैन वी राइट इट एज 1 plus sin a होल स्क्वायर। हमने इसको लिखा अंडर रूट 1 plus sin a होल स्क्वायर अपॉन, अब बात आती है डिनोमिनेटर की। वी नो दैट whenever we rationalize any denominator तो जब उसको हम कंजुगेट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, तभी आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर पाएंगे। राइट? यहाँ पे देखिए 1 minus sin a into 1 plus sin a कैन बी अप्लाई a minus b into a plus b which is equal to a square minus b square। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे दो चीज अप्लाई करी। एक तो आपने ये अप्लाई किया कि a plus b into a plus b कैन बी रिटन एज a plus b होल स्क्वायर। सेकेंडली हमने अप्लाई किया a plus b into a minus b is equal to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है? अब क्या इस स्क्वायर से रूट को काट दे? नो, क्योंकि जो ये स्क्वायर रूट है वो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों पर है। यानी कि अगर आप दोनों को कंबाइंडली होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तभी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। अब हम देखते हैं क्या डिनोमिनेटर में कोई होल स्क्वायर बन रहा है क्या? हम क्या इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर बाय अप्लाइंग एनी ऑफ द आइडेंटिटी? लेट अस चेक इट। न्यूमरेटर विल कम एज इज अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 माइनस sin स्क्वायर a। आया दिमाग में कुछ? डिनोमिनेटर में कोई कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है क्या? देखो in denominator 1 minus sin square a can be written as cos square a। exactly, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 1 plus sin a होल स्क्वायर अपॉन cos square a। अब ब्रैकेट में आप रीजन देंगे because 1 minus sin square a equals to cos square a। तो आपने 1 minus sin square a को रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू cos square a से। अब न्यूमरेटर में भी होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है उसको भी आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने इस पर से लिखा स्क्वायर रूट 1 plus sin a अपॉन cos a होल स्क्वायर। इसको आपने होल स्क्वायर लिख दिया। बोथ आर सेम थिंग्स। यहाँ दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग अलग था, यहाँ आपने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस स्क्वायर से रूट को कट आउट कर सकते हैं। क्या मिला आपको? आपको मिलेगा 1 plus sin a अपॉन cos a। बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब अगर आप डिनोमिनेटर को अलग अलग रखोगे मतलब एलसीएम को तोड़ के 1 के साथ अलग रखोगे साइन के साथ अलग रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर अगर आपके दिमाग में नहीं है ये चीज, आपको लगा नहीं मैंने क्या साइन और cos सिंपलेस्ट फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है,
सो हाउ सिंपली वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है 10th क्लास, बस कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, इसी को घुमा फिरा के कोई और क्वेश्चन बन जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसा एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे आज। क्वेश्चन नोट कीजिए, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। एंड इन माय प्रीवियस क्लास आल्सो आई गेव यू अ क्वेश्चन, वो भी आपने सॉल्व किया होगा। प्लीज ये भी सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। इतनी चीजों को सॉल्व